الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کی برائی نہ کرے، تمسخر نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کی برائی نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالیں، آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، آپس میں ایک دوسرے سے گالی گلوچ نہ کریں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آگے ارشاد فرمایا کسی کو برے نام سے نہ پکارے، غلط نام سے نہ پکارے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آگے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کا برا نام رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو گناہوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور فسق و فجور اور گندی بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ساب المسلم، کہ مسلمان کو گالی دینا کل مشرف علی الہلاکہ، آدمی ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اتنا میٹھا نہ بن کہ چٹ کر جائے بھوکے، اور اتنا کڑوا بھی نہ بن کہ جو چکھے سو پھوکے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، کچھ جمعہ سے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی کچھ آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے، یعنی سورہ حجرات میں جن جن گناہوں کی طرف ہمیں نشاندہی کی گئی ہے
निशानदही क्या बल्कि खुल्लम खुल्ला फरमाया गया है, साफ तौर से हमें हुक्म दिया गया है कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन आमाल कबीहा से हमें बचना चाहिए, इन बुरे आमाल से हमें बचना चाहिए। उसमें से कुछ आमाल जो आमाल कबीहा है, बुरे आमाल हैं, उसकी तरफ आपको मैंने मुतवज्जह किया और कुछ बातें आपके सामने अर्ज की। आज का मौजू है हमारे बयान का कह लो, गुफ्तगू का कह लो, मुज़ाकरे का कह लो, गाली गलौज। आज माशरे में बहुत ही ज्यादा गाली गलौज होने लगी है, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। जो पहले बड़े बड़े लोग गालियां नहीं देते थे, आज वो छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं। बड़ों की बात तो है ही कि बहुत सारे जवान इसमें मुब्तला हो गए हैं कि जरा सी कोई बात हो गई, जरा सी कुछ गुस्से वाली बात हो गई, किसी ने छेड़खानी कर दी या कुछ भी हुआ, किसी से कोई तकलीफ पहुंच गई, आदमी गालियां निकालने लग जाता है। हालांकि इसकी मुमानियत कुरान और हदीस में बड़ी सख्ती से आई है। जबान की आदमी को हिफाजत करनी चाहिए, खामोश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आदमी बोले पहले सोचे फिर बोले, पहले तोले फिर बोले, फूंक फूंक कर बोले, जरूरत का बोले, बेजरूरत न बोले। उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन इन चीजों की तरफ खास तवज्जो दिलाते हैं और बुजुर्गान दीन इसकी तरबियत के लिए बहुत ज्यादा कोशा रहते हैं। 4 चीजें ऐसी हैं कि जब आदमी खानका में जाता है, अल्लाह वालों के पास जाता है, बुजुर्गान दीन के पास जाता है, तो खास 4 चीजों की तरफ उनको तवज्जो दिलाई जाती है, उनकी तरबियत की जाती है, उनको मुजाहिदात किया कराए जाते हैं। तकलील ताम, कम खाना, तकलील मनाम, कम सोना, तकलील कलाम, कम बात करना, तकलील इख्तिलात मअल अनाम, लोगों के साथ कम मिलजुल रखना। ये 4 चीजें हैं। बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम, हमारे मुरब्बी हजरात, हमारे खानका से जुड़े हुए लोग और साहिब निस्बत लोगों की खिदमत में आप जाओगे तो सबसे पहले इसी की तरफ मुतवज्जह करेंगे कि इन चीजों की तरफ तवज्जो दो। खाना कम खाओ, सोवो कम और बातें कम करो, लोगों के साथ कम मिलो, तो आपकी तरबियत ज्यादा से ज्यादा होगी और आगे के मराहिल आसान होंगे। हमारी इस्लाह के जो मकाम है, जो मराहिल हैं, जो दर्जे हैं, वो आदमी चढ़ता चला जाएगा और वो उसको आसानी हो जाएगी उन दर्जों तक पहुंचने में। इसलिए बुजुर्गान दीन अपनी जबान के बारे में बहुत ही ज्यादा तंबीह करते रहते हैं कि जबान को लगाम दो, जबान को कंट्रोल में रखो, खामोश रहने की कोशिश करो। आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, वो सहाबी है कि जो उलमाए किराम के सरदार होंगे कयामत के रोज। उलमाए किराम का झंडा उनके हाथ में होगा, वो आगे आगे चल रहे होंगे और जितने भी उलमाए किराम हैं सब इनके पीछे पीछे चलेंगे। ये वो आदमी है। हजरत मुआज़ इब्न जबल वो शख्सियत है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को रुखसत करते थे, मस्जिद के दरवाजे से, घर के दरवाजे से रुखसत कर देते थे, घर के दरवाजे तक जाते थे और मस्जिद के दरवाजे तक जाते थे, उसको रुखसत कर देते थे। लेकिन मुआज़ इब्न जबल वो शख्सियत है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रवाना करने के लिए 10 किलोमीटर तक चले। ये वो शख्सियत है। ये वो शख्सियत है कि आज भी उर्दू में उनकी कब्र पर जाया जाए तो आज भी उनकी कब्र से खुशबू आ रही है। बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, ऐ मुआज़, पूरे दीन का निचोड़ तुझे बताऊं, पूरे दीन का निचोड़ बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया हजरत मुआज़ इब्न जबल ने, अजल
माँ हूँ, अल्लाह के नबी वो क्या है, जरूर बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से नहीं कहा, छोटे बच्चे की तरह समझाया। कैसे समझाया? जबान को पकड़ाओ, जबान को यूं पकड़ाओ, बोला नहीं, पकड़ा और कहा, छोटे बच्चे की तरह समझाया कि इसको कंट्रोल में रखना, इसको बचा बचा के चलाना, इसको तोल तोल के इस्तेमाल करना, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। हज़रत इब्न मुआज़ इब्न जबल ने अर्ज किया, नबीउल्लाह, क्या जबान के बोलों का भी हिसाब किताब होगा? जबान के बोल निकलते हैं और उड़ जाते हवा में, उसका नामो निशान नहीं रहता। क्या अल्लाह के नबी उसका भी हिसाब होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल तेरी माँ तुझको रोए, ऐमास तेरी माँ तुझको रोए। अल्लाह की कसम, कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में ऊंधे बल गिरने वाले वो शख्स होंगे जिन्होंने अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखा होगा। तो सबसे ज्यादा जहन्नम में गिरने वाले, अल्लाह के नबी ने बेनमाजी नहीं फरमाया कि सबसे ज्यादा बेनमाजी जाएंगे, चोरी करने वाले जाएंगे, जीना करने वाले जाएंगे, जाएंगे लोग जहन्नम में, लेकिन सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? गिबत करने वाला नहीं, हसद करने वाला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा जहन्नम में ऊंधे बल ये जबान की वजह से लोग गिरेंगे। ये है। तो जबान बड़ी सख्त, बड़ी खतरनाक चीज है और अच्छी भी चीज है, बड़ी खतरनाक भी चीज है और अच्छी भी चीज है। तो बुजुर्गान दीन हमें तालीम देते हैं, चार चीजों की तरफ मुतवज्जा करते हैं और खास तरबियत करते हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानका में कोई जाता था तो इनको कहा जाता था, खामोश रहना, बोलना मत, इसके बाद मुराकबा तुम्हारा आएगा, बोलना मत। हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए, नए नए फारिग थे, तशरीफ ले गए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानका में। हजरत ने तालीम दी कि बोलना मत, खामोशी इख्तियार करना। अब रात का वक्त है, सोने के लिए अपने रूम में पहुंचे, अपनी जगह पहुंचे। अब नए नए आलिम थे, नए नए फारिग हुए थे, एक मसले पर बहस करने लगे। तो बहस करते करते आवाज जरा बुलंद हो गई, दरबान आ गया और कहा, भाई हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायदा और कानून बनाया है कि इशा के बाद सो जाया करे, बातें ना करे। ये कहकर चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज बुलंद हुई, दरबान आया और कहने लगा कि हजरत का हुक्म है कि कोई अगर इशा के बाद बातें करे तो उसका बोरिया बिस्तर बाहर डाल दो, उनको निकाल दो, यहां रखने की इनको जरूरत नहीं है। कि जब किसी बात पर अमल और किसी बात का और किसी अमल का हुक्म दिया जाता है, जब तुम उसको करते नहीं हो तो खानकाह में आने का क्या फायदा, निकल जाए। अब की बात तुम्हें मैं, अब की बात अगर आपने बात की तो मैं आपको निकाल दूंगा, बोरिया बिस्तर लेकर निकाल दूंगा। फिर इनको एहसास हुआ कि खामोशी कितनी बड़ी चीज है। ये है बुजुर्गान दीन, या अल्लाह वाले। एक बड़े आलिम आए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के पास, तो इनको कहा कि खामोश रहना, किसी से बात मत करना। अब वो खामोश खामोश घूम रहे हैं, खामोश खानका में है, अमाल कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, बात करते हैं तो खामोशी से, इशारे से बात करते हैं। अब ये बात मशहूर हो गई कि ये आलिम है लेकिन इनकी जबान नहीं है, ये गूंगे हैं। जब इनको रंग चढ़ गया और तरबियत हो गई तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कहा कि अब तुम्हें कुरान की तफसीर करना है। कुरान की तफसीर के लिए इनको बिठाया तो लोग कहने लगे, देखो हजरत कितने पहुंचे हुए हैं कि एक गूंगा आदमी बोलते हो गया, हालांकि हजरत ने इनको बोलने से मना फरमाया। ये है। तो हमारे बुजुर्गान दीन हमेशा खामोश रहते थे और खामोशी की तलकीन करते थे। शेख वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े बारौब थे, कोई इनके सामने चूनो चिरा नहीं कर सकता था, कोई इनके सामने यूं आंख उठाकर देख नहीं सकता था। अल्लाह ने इनके चेहरे पर ऐसा जलाल, ऐसा रौब, ऐसा नूर तारी किया था कि आदमी टिक टिकी निगाह से उनको देख नहीं सकता था। बड़े बारौब आदमी थे। जब वो आ जाते थे किसी की मजाल नहीं कि आपस में बातें करें। हजरत असर के बाद एक मर्तबा तशरीफ लाए
सब बैठा हुआ मजमा है, पूरी मस्जिद भरी हुई है, लोग मौजूद हैं और इंतजार में है कि हजरत आएंगे और बयान फरमाएंगे, और सारे लोग मौजूद, इंतजार, हजरत तशरीफ लाए, कुर्सी पर बैठे, बैठ के नीचे अपना सर नीचा कर लिया और खामोश रहे, खामोश रहे, यहां तक कि 1 घंटा हो गया, मगरिब का वक्त करीब आ गया, कुछ न बोले, कुछ न बोले। और फिर जाते जाते कहने लगे, ये भी एक बहुत बड़ा बयान था कि आदमी खामोश रहे। क्या कहा? सारा मजमा खामोश, हजरत भी खामोश, 1 घंटे तक कोई कुछ न बोला। तो हजरत ने फरमाया कि ये भी बहुत बड़ी तरबियत और बहुत बड़ा बयान है कि आदमी खामोश रहे। इतने बड़ा मजमा होने के बावजूद पास सारे के सारे बैठे हैं, फिर भी खामोश रहना, ये भी बहुत कमाल की बात है और ये भी बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ी नसीहत है कि आदमी खामोश रहे। ये मैंने आपकी तरबियत की है कि खामोश रहना सीखें। खामोश रहना सीखने से आएगा, कहने से और बोलने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आदमी को अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा, अपने आप को इसके बारे में संवारना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी बहुत बोलता था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर बोझ पड़ता था। एक मर्तबा एक शख्स आ रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो करीब आ गया, अल्लाह के नबी से कुछ बातें पूछने लगा, बात पूछ कर जब चला गया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अर्ज किया, आई नबीउल्लाह, जब वो शख्स आ रहा था तो आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और जब आपके पास आया तो बड़ा एहतराम उसका किया। तो कहने लगे, वो उसका काम था, मेरा काम है उसका अदब करना, उसका काम है आना, मेरा काम है अदब करना। कोई आदमी आ जाए तो मैं उसको झंझोड़ दूं, कोई आदमी आ जाए मैं उसको जलील करूं, कोई आदमी आ जाए मैं उसको धुतकार दूं, ये अंबिया का काम नहीं है, एक नबी का ये काम नहीं है, एक रसूल का काम नहीं है। वो जब आ गया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसका अदब करूं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अदब किया। फिर पूछा, आपने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा था? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इन्ना लिल्लाह इसलिए पढ़ा था कि मैं जानता हूं ये आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, मुझे ऐसा लगा ये आएगा तो बहुत वक्त बिगाड़ेगा, क्या से क्या बोलेगा, क्या से क्या बोलेगा। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया है, एक असवद नामी शख्स आए, अल्लाह के नबी से कहने लगे, नबीउल्लाह कुछ अशार सुनाना चाहता हूं। अशार सुनाने लगे, उतने में एक शख्स आया, अल्लाह के नबी के पास आकर बैठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या काम है? उसको कहा, असवद को खामोश रहो, सुना। फिर वो चला गया, इनको कहा, चलो अशार सुनाओ। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पढ़ रहे थे, नाआत पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे थे अशार में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनाओ। सुनाने लगे, फिर वो शख्स आ गया, वही शख्स। अल्लाह के नबी ने कान धरा और उसकी बात सुनी, इनको कहा, खामोश रहो, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूं। बात सुनाई, चले गए। 3-4 मरतबा इस तरह वो शख्स आए, अल्लाह के नबी ने इनको खामोश किया, इनकी बात सुनी। जब ये चले गए तो असवद ने कहा, क्या नबीउल्लाह, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपकी शान में अशार पढ़ रहा हूं और बार बार आप मुझे रोक रहे, उसकी बात सुन रहे, मुझे रोक रहे, उसकी बात सुन रहे, क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स है कि गलत कलाम, लग़व कलाम, बेकार बातें ये आदमी नहीं करता, इसलिए ये मुझे पसंद है और मैं उसका एहतराम करता हूं। जरा सोचे, जो आदमी गलत कलाम से और बुरे कलाम से और बेकार बातों से दूर रहे, वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना पसंद है, कितना पसंद था। एक बुजुर्ग थे, इनके पास एक शख्स आया, एक वक्त गुजर गया, इन्होंने सोचा इसको खिलाफत देनी चाहिए, तरबियत हुई, मुजाहिदात करवाए, लगा के इसकी तरबियत करनी चाहिए। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए अपने दोस्त के पास उसको भेजा, वो भी बड़े अल्लाह वाले थे। वो आदमी उस मुरीद को कहा कि आप जाइए फला बुजुर्ग के पास, ये खत लेकर जाइए और इनको दीजिए, फिर आप यहां तशरीफ लाए। अब इन्होंने, ये गया आदमी उस बुजुर्ग के पास, दूसरे बुजुर्ग के पास, अपने शेख ने उनको भेजा, वहां जाकर चिट्ठी दी। उसमें लिखा हुआ था कि ये जो आया हुआ मेरा मुरीद है, इतने इतने साल से मेरे पास रहा, मुजाहिदात कराए, बड़ी तरबियत मैंने उसकी की है और बहुत ज्यादा उसकी तरबियत करके आपके पास भेज रहा हूं। मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है कि मैं उसको खिलाफत दूं।
اب یہ خلافت کا مستحق ہے، خلافت کے لائق ہے کہ نہیں، ذرا جانچ پڑتال کر کے مجھے بتائیں، لکھ کر دے، میں اس کو خلافت دوں یا نہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد بزرگ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اب فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ شادی ہو گئی؟ تو اس نے کیا کہا؟ ہاں شادی ہو گئی حضرت، 2 بچے ہیں۔ اب اس کو خالی اتنا بولنا چاہیے تھا شادی ہو گئی، 2 بچے کا پوچھا نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے بول دیا 2 بچے ہیں۔ اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے پیچھے لکھا یہ خلافت کے بالکل لائق نہیں ہے، بہت زیادہ بولتا ہے۔ کیا کہا؟ صرف اتنا بولا تھا 2 بچے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین زبان کی کنٹرول پر بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس کے بارے میں بہت مجاہدات کرواتے تھے، اس کے بارے میں بڑی تربیت کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ زبان سے بہت ہی زیادہ ہمیں برے بول جو بولتے ہیں، یا زبان سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، برے بولوں سے، گندے بولوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، بیکار بولوں سے خاموش رہنے کی کوشش کریں، خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ بزرگان دین کی خدمت میں رہ کر یہی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا اے معاذ، اے معاذ، پورے دین کا نچوڑ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر بتایا یہ ہے پورے دین کا نچوڑ، کہ اس کو کنٹرول میں کر لو، پورا دین آپ کو، پورے دین کا نچوڑ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھتے تھے، اور کبھی کبھی زبان کو یوں کھینچتے تھے، اتنی زبان کو کھینچتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو رحم آ جاتا تھا اور کہتے تھے اے امیر المومنین، آپ اس طرح اپنی زبان کو نہ کھینچے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے یہی تو وہ زبان ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئی، جب لوٹ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے تم جا رہے ہو دنیا میں، اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا، اور کہاں کہنا کہ یہ پورا کا پورا جنت جو ہے، جنت کی جو زمین ہے وہ تمام کی تمام چٹیل میدان ہے، اس میں کسی قسم کے درخت نہیں ہے، پھل نہیں ہے، درخت نہیں ہے، اس کو تمہیں اگانا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو یہ زبان وہ دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو اس کی اس نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کو کرنا چاہیے، اس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے اور صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ایک جھگڑے میں گئے، سامنے والے کے پاس جو مدعی تھا اس کے پاس جا کر اس کی سنوائی کی، لیکن اس کو بیچارے کو پیرالائسس ہو گیا تھا۔ ہمیں اس کی بات سمجھنے میں اتنی دشواری ہوتی تھی، وہ جب بولنا چاہتا تھا تو اس کی زبان اٹک جاتی تھی، کتنی دیر ہم اس کے منہ کی طرف تکی نگاہ سے دیکھتے رہتے تھے، آگے یہ کیا بولیں گے، کیا بولیں گے، کیا بولیں گے۔ ان کی زبان سے بات ہی نہیں نکلتی تھی، بہت زور لگاتے تھے پھر وہ بات ان کی زبان سے نکلتی تھی۔ ہمیں ان کے بولنے پر رحم آتا تھا، ہمیں رحم آتا تھا کہ بیچارے کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، ہٹا کٹا آدمی، پیرالائسس ہو گیا، زبان میں بھی پیرالائسس ہو گیا، ہوا لگ گئی، بول نہیں سکتا، اور اتنا زور لگاتا تھا اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی جب وہ بولنا چاہتا تھا، اور کتنی دیر میں ایک بات وہ بول سکتا تھا، اور وہ بھی صاف صاف نہیں بول سکتا تھا۔ اس وقت ہمیں تو معلوم ہوئی ہمیں کہ ہماری زبان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پیرالائسس ہو گیا، آج وہ بولنا چاہتے ہیں بول نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ زبان ہمارے لیے جنت کا بہت بڑا خزانہ ہے، آخرت کا بہت بڑا خزانہ ہے، کہ آدمی زبان سے دعائیں کرے، آدمی زبان سے کلمہ پڑھے، آدمی زبان سے قرات پڑھے، آدمی زبان سے قرآن پڑھے، اور روزمرہ کی سب سے افضل ذکر قرآن ہے، قرآن کو خوب پڑھو۔ دوسرے نمبر کا ذکر روزمرہ کی دعائیں، نکلنے داخل ہونے، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے، گھر سے داخل ہونے، گھر میں نکلنے۔ گھر سے آدمی نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے کہتے ہیں کہ تیری حفاظت ہو گئی، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو
बामुराद होकर अपने घर लौटेगा, तुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और शैतान पीछे हट जाता है, किससे? जबान से। खाली जबान से आदमी बोला। ये है आदमी जब सुबहान अल्लाह एक मर्तबा कहता है, हदीस पाक में आता है कि उसको 100 हज का सवाब मिलता है। 100 हज अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसको 100 घोड़े अल्लाह के राह में कुर्बान करने का उसको सवाब मिलता है। और 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से 100 गुलाम आजाद करने का उसको सवाब मिलता है। और अल्लाह अकबर कहता है तो उस दिन जो 100 मर्तबा अल्लाह अकबर कह देता है, तो उस दिन उससे अफजल आदमी कोई शख्स नहीं, सिवाय ये कि उसके बराबर किसी ने अल्लाह अकबर कहा। कितनी बड़ी बात है। अभी आप बाजार से आ रहे हैं, बाजार में दाखिल होते वक्त आपने पढ़ा हो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, अगर पढ़ा हो तो कितना सवाब मिलता है? कितनी देर लगती है? 3 सेकंड 4 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। चौथा कलमा पढ़ने में सवाब कितना? 10 लाख ने क्या मिलती है, 10 लाख गुना माफ होते हैं, 10 लाख दर्जे बुलंद होते हैं। और आगे फरमाया कि अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। कितनी बड़ी बात है। किससे मिलता है? जबान से। जबान थोड़ा हिला लो, 2-4 सेकंड हिला लो और सवाब कितना ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन आदमी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता और जबान को लगव बातों में इस्तेमाल करता है। मैं गाली गलौज के मुतालिक आपके सामने आइंदा जुमा को अर्ज करूंगा। मेरा आज का मौजू भी वह यही था, गाली गलौज कितनी खतरनाक और संगीन चीज है, वो आपको मैं समझाना चाहता था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को इसके बारे में आपके सामने अर्ज करूंगा। आज तय करके उठे कि हम खामोश रहेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। आदमी देखो चौराहों पर बैठकर जवानों को देखो, औरतों को देखो, मर्दों को देखो, बच्चों को देखो, जबान कैंची की तरह चलती है। अभी देखना, अभी ये खुतबा शुरू होगा, आप देखना कोई इधर बातें कर रहा होगा, कोई उधर बातें कर रहा होगा, कोई यहाँ बातें कर रहा होगा, कोई किसी को कहने वाला नहीं। हर जुमा को ऐलान होता है भाई अल्लाह के वास्ते बातें ना करो, अल्लाह के वास्ते खामोशी इख्तियार करो। लेकिन कितने लोग हैं जो सुनने वाले, कितने लोग हैं जो सुनने वाले। मैंने गुज़िश्ता भी आपको कहा था, एक मस्जिद पूरी खाली हो गई, बहुत कम लोग नमाज पढ़ने वहां थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों की मुलाकात की कि आप दिखते नहीं हो, क्या बात है? तो कहने लगे मुफ्ती साहब हमें उस मस्जिद में सुकून मिलता था कि नमाज पढ़े और सुकून में, लेकिन हमने देखा कि कुछ जवान ऐसे है कि जो इतना शोर करते, हमें नमाज के अंदर, बयान के अंदर कुछ समझ ही नहीं आता। बयान उधर हो रहा है, पीछे से आवाजें आ रही है, तो हमने वो मस्जिद छोड़ दी। हमने वो मस्जिद, और सबब कौन बने? मोहल्ले वाले। सबब कौन बने? मोहल्ले वाले। ये मस्जिद इन्होंने छोड़ी, उनको कितना गुनाह होगा जरा सोच लीजिए। इसलिए हमें चाहिए कि मोहल्ले की मस्जिद को मोहल्ले वाले आबाद करेंगे। दूसरे लोग, ये जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद पूरे शहर की मस्जिद है, यहाँ सब लोग आएंगे, लेकिन मोहल्ला वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आराम और उनकी सहूलतों का हम ख्याल करें, उनकी सहूलतों को हम ख्याल करें, मद्देनजर रखें और उनको सहूलतें और आराम पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें, शोर शराबा न करें। बच्चे अगर शोर शराबा करते हैं, प्यार मोहब्बत से उनको टोकने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें। अगर ये बच्चे नहीं समझते तो हमें कहें, इन बच्चों की हम मुलाकात करेंगे, बैठ कर इंशाअल्लाह इनके सामने बयान करेंगे और इनको समझाएंगे कि मस्जिद कितनी अहम चीज है। और ये तो जामा मस्जिद है, मस्जिद भी नहीं, जामा मस्जिद है जहां एक नमाज का सवाब 500 नमाजों का सवाब मिलता है। फज़ाइल अमाल में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला का इन सभी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।